लगता है कांग्रेस अपना आपा खो बैठी है। गुजरात के मुख्यमंत्री को बंदर कहना यह अभद्रता की सीमा को लांघना है और यह अपमान गुजरात के मुख्यमंत्री का नहीं है, यह अपमान गुजरात का है और गुजरात की जनता इस अपमान का करारा जवाब आने वाले चुनाव में देगी। कांग्रेस के वहां के नेता मुख्यमंत्री को बंदर कहते हैं और बंदर बाट करने वाले तो कांग्रेस ही होते हैं और इसलिए इस तरह की अभद्र भाषा की हम घोर भर्त्सना करते हैं। कांग्रेस के पास गुजरात में कोई मुद्दा नहीं है। हर चुनाव में और पिछले 3 महीने से खासकर गुजरात के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का चरित्र हनन करने का और अभद्र उनके लिए भाषा का प्रयोग कांग्रेस के नेताओं द्वारा कर रहे हैं। कभी मौत का सौदागर कहा, कभी आदमखोर कहा, अब बंदर कहा और इसलिए हमने कहा कि ये गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्ति का अपमान नहीं है, यह गुजरात का अपमान है और इसका बदला गुजरात की जनता करारा जवाब देकर देगी। आज मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 12 साल के कार्यकाल में जिस तरह से वो विकास के और सुशासन के प्रतीक बन गए हैं, कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई आरोप लगाने के लिए कोई उनके पास वस्तुस्थिति नहीं है और इसलिए वो अनर्गल भाषा का उपयोग कर रहे, अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे। सांस्कृतिक दिवालियापन जो उनका है वो दिखा रहे हैं। कांग्रेस अपने चाल चरित्र का परिचय दे रही है और इसलिए ऐसी अभद्र भाषा कोई सहन नहीं करेगा और लोकतांत्रिक तरीके से लोग इसका करारा जवाब देंगे। हम कहेंगे सोनिया जी बताएं, कांग्रेस अध्यक्षा है, क्या ऐसी भाषा शोभा देती है? कांग्रेस को गुजरात की जनता की माफी मांगनी चाहिए। The intemperate language used by Banki, absolutely condemnable. This intemperate language is the result of their frustration. Chintan Shivir at Surajkund. Country wants to know from Congress how they are going ahead with the inquiries in various corruption scams. What we have seen is practically scuttling of the case in case of CWG, trying to cover up the 2G investigation also. Now they want to finish the coal scam investigation. They are not ready for impartial probe and cancellation of coal block allocation. We want to raise one question to the Prime Minister. If in CWG the final signatory is responsible, why in coal scam the intermediate signatories are responsible and not the final signatory, which is the Prime Minister as a coal minister has sanctioned every allocation, has signed as he is the final signatory to the sanction in each coal blocks during 2006 and 2009. And it's a massive monumental corruption. 17 billion tons of coal reserves worth 50 lakh crore rupees given on platter for free to 140 plus companies. And instead of cancelling the private blocks, now they are cancelling the blocks allotted to the PSUs.
This is the way of Congress dealing with the corruption. And what our other question is what they are going to do about people's problem, inflation and price rise, LPG cap and decision on FDI in MB retail and diesel price hike. We demand and reiterate people's demand that all the three anti-people decisions, capping of LPG cylinders to 6, raising the prices of diesel by ₹5 and allowing FDI in MB retail should be immediately rolled back. If that happens in Surajkund, it has some use for the public. Otherwise, it is a useless exercise. The Chintan Shibir should actually now calculate how much they have defrauded the nation, how much loot and plunder they have indulged into. They have also betrayed the people of Telangana. They are not taking decision on Telangana, on LPG, on MB retail, on diesel price hike. All those three anti-people decisions should be rolled back and immediate statehood of Telangana should be granted. आज कांग्रेस का चिंतन शिविर हो रहा है. हर पार्टी अपना चिंतन शिविर कर सकती है, लेकिन हम आज देश की जनता सवाल पूछ रही है कि जनता को सबसे तकलीफ देने वाला जो निर्णय, जन विरोधी निर्णय उन्होंने किए हैं कि गैस सिलेंडर केवल 6 मिलेंगे, ज्यादा सिलेंडर के लिए 1000 रुपये लगेगा, यह जन विरोधी निर्णय वापस होगा कि नहीं? डीजल के दरों में 5 रुपए का इजाफा हुआ, उससे सारी कीमतें बढ़ गई है, वो वापस होगा कि नहीं? जो खुदरा व्यापार में जिसमें कोई तकनीक का मुद्दा नहीं है, उसमें विदेशी निवेश को जो इजाजत दी है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी, क्या ये निर्णय वापस होगा कि नहीं? ये 3 जन विरोधी निर्णय वापस होंगे कि नहीं, ये हमारा पहला सवाल है, जनता का पहला सवाल है. और तेलंगाना जैसे समस्या का 4-4 साल से, कल ही 2 छात्रों ने आत्महत्या की है. क्या तेलंगाना के साथ न्याय करेंगे कि नहीं? तेलंगाना पृथक तेलंगाना राज्य का निर्माण करेंगे कि नहीं? ये मुद्दे हैं आज देश के. और कांग्रेस इस चिंतन शिविर से जवाब दे कि देश को कितना और लूटेंगे. इतनी लूट मचाई CWG में, 2G में, कोल स्कैम में, 1700 करोड़ टन का कोयला भंडार जिसकी कीमत 50 लाख करोड़ रुपए होती है. प्रधानमंत्री जब कोयला मंत्री होते हैं तो 140 निजी कंपनियों को देते हैं, और ये इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप और सरकार सारे कोल के ब्लॉक जो निजी कंपनियों को दिए हैं वो रद्द नहीं करते हैं, जो सरकारी कंपनियों को दिए हैं उसको रद्द करते हैं. और ये बता दे कि अगर CWG में अंतिम हस्ताक्षर करने वाला जिम्मेवार है, तो कोल खदानों का आवंटन में जिनके अंतिम हस्ताक्षर है मंजूरी के, वो प्रधानमंत्री कैसे जिम्मेवार नहीं? और इसलिए ये सारे मुद्दे महत्वपूर्ण है आज लोगों के लिए. और आज चिंतन शिविर से इसके बारे में क्या जवाब देंगे? और भी एक मुद्दा है कि इंदौर के कोर्ट ने CBI के जांच का दिग्विजय जी के खिलाफ आदेश दिया है. क्या उस पर अमल शुरू हुआ है कि नहीं, उसका भी जवाब हम चाहेंगे. उत्तर प्रदेश सरकार की नीति निश्चित रूप से सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने वाली है कि जो बम विस्फोट के आतंक के आरोपी है, बिना जांच के उनके आरोप वापस लेना, ये खिलवाड़ होगा न्याय के साथ. और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की जानबूझकर घटनाएं हो रही है, इलाहाबाद गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक, और जिस तरह से पुलिस पर हमले हो रहे, जिस तरह से बुद्ध मूर्ति और बाकी स्मारकों को तोड़ा जा रहा है, और जिस तरह से
एक सांप्रदायिक तनाव फैजाबाद और विभिन्न क्षेत्रों में तैयार करने की कोशिश हो रही है, वो बिल्कुल ही एक नई मिलिटेंसी को जगह देने की बात है। और इसलिए इसकी हम भर्त्सना करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों की, और सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने के लिए कदम उठाने चाहिए, यह हम मांग करते हैं। हम राम में विश्वास रखते हैं। राम जेठमलानी क्या कहते हैं, इससे हमारी सहमति नहीं है। If somebody is saying that it is for the city urban women and not for the rural women, the whole Panchayat Raj reservations have succeeded in bringing out the best of rural women also. And they are leading panchayats, Jila Parishads, corporations, municipalities and Gram Panchayats. So, this is the reality of India, a changing reality of India, empowered womenhood of India. And he has insulted that empowered womenhood of India. We condemn that. इसको हिंदी में बोल दीजिए। ये जो मुलायम जी ने महिला आरक्षण पर अपनी टिप्पणी की है, किसी का विरोध हो वो अलग चीज होती है, लेकिन ये ग्रामीण महिलाओं के लिए नहीं है, ये शहरी महिलाओं के लिए ये कहना बहुत ही अन्यायपूर्ण है। क्योंकि पंचायत राज में, ग्राम पंचायतों में, जिला परिषद और नगर पालिका, नगर निगमों में जिस तरह से महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है और जिस तरह से वो वहन कर रही है, हमारी बहनें जिस तरह से उसको संभाल रही है, वो गर्व की बात है देश के लिए। और ये महिलाओं का सशक्तिकरण का एक मंत्र बन गया है। उसके जगह उसको नकारते हुए खुद उनकी बहू भी आई है लोकसभा में, जिसका हमने स्वागत किया। तो ऐसे स्थिति में शहरी और ग्रामीण महिलाओं में इस तरह का भेद करके महिलाओं के आरक्षण का विरोध करना नाजायज है, हम इसको सही नहीं मानते। See, one thing is very absolutely sure. The way Congress has used, abused and misused the CBI, institution like CBI is deplorable. And we have seen how CBI in present dispensation has become the most trusted ally of UPA. They can tweak the stand of CBI to suit the political convenience of the Congress. Congress is responsible for misuse of CBI. So that is always a worry. So people are discussing, and as we have said yesterday, what Comptroller Auditor General has said are important issues which should be debated.